Hello everyone, welcome back. So today we will be continuing our series on JavaScript. तो in the last session हमने data types के बारे में पढ़ा था and the different types of data types which were primitive and non-primitive. उसके अंदर हमने non-primitive के types पढ़े थे and primitive के types पढ़े थे with the help of examples. So what we are going to learn today we are going to learn about operators. So now what operators are? Like we can think of operators like कुछ tools जो एक tool kit में होते हैं जैसे hammer होता है nail होता है then we have pluggers and all. तो ऐसे different different tools होते हैं तो they are similar to what operators are, which means कि they allow us to do everything from a basic maths. मतलब हम एक किसी भी 2+4 भी कर सकते हैं और 2 की पावर 100 भी कर सकते हैं. So आज हम we will be learning about operators and there are different types of operators. So let's understand. There are 8 types of operators which are arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, string operator, logical operator, bitwise operator, ternary operator and type operator. As the name suggests, arithmetic मतलब plus, minus, division, multiplication and all. ठीक है. असाइनमेंट मतलब हम किसी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लाइक वी आर असाइनिंग सम वैल्यूज. अब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स मतलब कैर. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब लॉजिकल और. बिटवाइज ऑपरेटर or not. Ternary operator like we are specifying a condition, then we are saying either this, here we have this, or this, matlab if else types conditions. Then we have a type operator. Which type of operator? Fine. Type and then we have of. So today we are going to study about the starting four. So let's go to our Visual Studio and today's topic is going to be operators. थोड़ी screen बड़ी करते हैं first of all, right. So first of all, we are going to learn about arithmetic operations. अब arithmetic operations, as I have told you, मतलब हम किसी चीज में addition, subtraction, multiplication, division या किसी चीज का modulus, increment, decrement and all. So let's start. First of all, we are going to define the value of a, for example 10, and the value of b इसको हम ले लेते हैं 5. Now सबसे पहले हम ऐड करेंगे. So console.log a plus b. फाइन. तो a plus b हो गया. ये एक टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है a एंड b पे. अब सिमिलरली हमें इस पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, शिफ्ट ऑल्ट और पेज डाउन की. तो या तो अब लाइक वी डू नॉट नीड टू कॉपी पेस्ट द थिंग्स एंड ऑल. नाउ प्लस की जगह माइनस, इसकी जगह वी आर गोइंग टू गो फॉर द डिविजन पार्ट, देन वी आर गोइंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, देन वी आर गोइंग फॉर अ मॉड्यूलस जिसमें हमें रिमाइंडर पता चलता है ये हमारा कितना रिमाइंडर बच रहा है. देन एट द एंड लेट्स गो फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ ए, फिर डिक्रीमेंट ऑफ ए, देन बी का इंक्रीमेंट एंड बी का ही डिक्रीमेंट. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस ओवर आवर कंसोल तो हमें वैल्यूज आई. अब देखते हैं इन वैल्यूज को ब्रेक डाउन करके कैसे कैसे आई हैं. 1 सेकेंड. और ये क्या आ गया, या राइट. तो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी. तो ये तो बहुत सिंपल सा है. 10 + 5 = 15. अब a माइनस बी, 10 - 5 = 5. देन a डिवाइडेड बाई b, तो 10 × 2 = 5. अब a मल्टीप्लाई बाई b, तो फिर आ गया हमारे पास 50. लेट मी राइट, लाइक वी कैन राइट एडिशन और let write add comma
Here we are going to write subtract. We are subtracting here. Then we are going to write div. Here we are multiplying. And here, right. Then here we are going to calculate the mod. Then for increment, A increase. For decrement, A dec. Similarly, here we are incrementing for B, and here we are decrementing for B as well as. So B decrement. Now when we run this again, अब simple हो जाएगा. देखो 15, 5, 2 और 50 तक आ गया. अब मॉड्यूलस मॉड्यूलस का क्या सीन है, हमें रिमाइंडर मिलता है. तो अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 होता तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता हियर, बिकॉज द रिमाइंडर वी आर गेटिंग इज 2. नाउ अब हमारे पास इंक्रीमेंट का सीन देखो. यहाँ पे ए का इंक्रीमेंट मैंने बोला कि ए की वैल्यू 12 है, और यहाँ पे मैंने ए का इंक्रीमेंट कर दिया और मेरे पास वैल्यू सिर्फ 12 आई. क्यों? हमारे पास वैल्यू इस वजह से 12 आई क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट हो चुका है. लाइक इट इज ए की वैल्यू अब हमारे पास 12 से 13 हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी वैल्यू 12 ही है. अगर यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू, और ये वाली चीज को कमेंट आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी आर गोइंग टू रन दिस. तो 1 second, let us run again. What is the error? A is not defined. Why A is not defined? A is defined here. Right. What is the error? Okay, add में error है. Add में तो कोई error नहीं है, वो तो हमने already. A is not defined. Let us say for example A की value 10. Fine. A का मैंने मस्त इंक्रीमेंट कर दिया. मैंने कंसोल डॉट लॉग को बोला मेरा A प्रिंट कर दो. लेट्स चेक नाउ. ओके, तो वो पीछे से ही एरर था कोई टर्मिनल टाइप सी, तो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते. अब देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 11. सिंपली आ गई. अब 11 क्यों आई? अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था तो मेरी वैल्यू 10 ही आएगी. यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो वैल्यू 10 ही आएगी, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद मेरी वैल्यू चेंज हुई. अब फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्रीमेंट पहले कर दूंगी अपने आउटपुट से. अब मेरे पास वैल्यू 11 आ गई. सिमिलरली अगर मैंने अपना डिक्रीमेंट पहले कर दिया तो मेरे पास वैल्यू 9 आएगी यहाँ पे. पर अगर मैंने अपना डिक्रीमेंट बाद में करा तो मेरे पास 10 और 9 आएगी वैल्यू. सिमिलरली मैं इसकी वैल्यू बी सी डी एफ जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ. नाउ दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस. लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड इनमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. नाउ लेट्स मूव टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स. अब what does these assignment operators are? अब assignment operator says, assignment operators बोलती है कि हम किसी वैल्यू को कुछ असाइन कर रहे हैं. मीन्स हम किसी वैल्यू को कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारी अब से वैल्यू ये रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ x इज 10. अब x की वैल्यू में असाइन करना चाहती हूँ 5 का इंक्रीमेंट. तो दिस मीन्स x की वैल्यू x+5 कर दी हमने. और अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग
x लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू 15 आनी चाहिए, विच आर वी गेटिंग एज 15। सिमिलरली अब मैं इसकी वैल्यू डिटेक्ट करना चाहती हूँ, तो मीन्स मेरे पास x माइनस 5 हो रहा है, तो मेरे पास वैल्यू 5 आनी चाहिए एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 5। तो लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर क्वाइट इजी, लाइक उनमें ऐसा कुछ है नहीं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का सीन देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, वो हमें बताएगा या तो सच है या तो झूठ है। तो इसमें हम लोग या तो इक्वल टू होगा या तो नॉन इक्वल टू होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो ज्यादा या इक्वल होगा या तो ज्यादा या कम होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर लेट, कोई भी नंबर ले लेते हैं एंड उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 50। अब हम बताएंगे कि क्या मेरा जो भी मैंने नंबर चूज किया है उसकी वैल्यू 50 है, या तो उसकी वैल्यू 50 होगी या तो उसकी वैल्यू 50 नहीं होगी। सिमिलरली इस पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे। अब मैं पूछूंगी क्या उसकी वैल्यू 50 नहीं है जो मेरा नंबर है, देन आई विल आस्क कि क्या जो मेरा नंबर है उसकी वैल्यू और उसका टाइप, मतलब अगर वो स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग होना चाहिए, वो नंबर है तो नंबर होना चाहिए, क्या वो तीनों चीजें सेम है या नहीं। उसके बाद वी ऑल्सो हैव अ कंडीशन जिसमें आई विल आस्क क्या वो सेम नहीं है या नहीं, देन वी विल आस्क कि क्या उससे बड़ा है, देन क्या छोटा है, एंड लाइक दिस ओनली। तो लेट्स गेट आवर आउटपुट। अब लेट्स ब्रेक दिस आउटपुट। सबसे पहले हमारा कंडीशन है कि क्या नंबर इक्वल है, नंबर इक्वल है। क्या नंबर इक्वल नहीं है, 50 और 50 तो इक्वल ही है, तो फॉल्स। अब क्या 50 एक न्यूमेरिक टाइप है और ये वाला 50 भी एक न्यूमेरिक टाइप है, तो क्या ये दोनों सेम है, ट्रू ये दोनों सेम है। क्या ये दोनों सेम नहीं है, फॉल्स, ये दोनों डेफिनेटली सेम नहीं है। देन क्या वैल्यू 50 बड़ा है टू द नंबर, लेट अस टेक दिस 20 और इसे भी 20 लेते हैं, राइट। अब 20 बड़ा है 50 से, नहीं तो फॉल्स। और क्या 20 छोटा है 50 से, तो ट्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आफ्टर दिस कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग वी कैन गो फॉर लेट्स गो फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर पार्ट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प अस टू कंबाइन द मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस और द वैल्यूज। मतलब हमारे पास जब मल्टीपल ट्रू फॉल्स की वैल्यूज होगी तो उन कंडीशंस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो इसका सीन देखते हैं। अब मैंने बताया कि इज अडल्ट है और उसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब मैंने बोला कि उसके पास क्या वो एक चाइल्ड है, नहीं वो एक चाइल्ड नहीं है, अडल्ट है तो चाइल्ड डेफिनेटली नहीं होगा। तो अब मैं पूछूंगी कंसोल डॉट लॉग कि अगर इज अडल्ट भी है और इस अडल्ट के साथ साथ अगर वो इज चाइल्ड भी है तो मुझे बता दो। मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो गई, ट्रू फॉल्स दो हो गई, एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल। उसके बाद मैं बोलूंगी कंसोल डॉट लॉग, इसमें वी विल आस्क कि या तो इस अडल्ट होना चाहिए या फिर और में हम बोल देंगे इस चाइल्ड होना चाहिए। ये वाली भी कंडीशन पता चल रही है हमें। और फिर हम पूछेंगे कंसोल डॉट लॉग कि क्या इस अडल्ट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, मतलब हमारा तो ट्रू है तो डेफिनेटली वैल्यू हमारी फॉल्स आनी चाहिए। तो पहले से प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट, इज अडल्ट ट्रू है और इज चाइल्ड फॉल्स है, और एंड कंडीशन है तो मतलब वैल्यू फॉल्स होगी। इसमें और कंडीशन है तो वैल्यू ट्रू होगी, और इस अडल्ट का नॉट बताना है तो ये तो ट्रू है, इसका नॉट होगा फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा। अब क्या दिक्कत हो गई ना, लेट्स चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। या वो ये नॉट ऑपरेटर और इसके बीच में हमेशा स्पेस इज इम्पोर्टेंट, फाइन। मैंने रखना भूल गई, देखो जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था इसका ट्रू इसका फॉल्स और इसका भी फॉल्स। अब इस अडल्ट को छोड़ के हम इस चाइल्ड भी लिखते हैं,
एंड व्हेन वी रन दिस तो मेरे पास वैल्यू ट्रू आ गई। क्यों? क्योंकि इस चाइल्ड की वैल्यू फॉल्स थी और उसका नॉट बताने तो दैट इज ट्रू। तो वी हैव concluded four types of operators, and the next type four types of operators will be told you in the next session. Fine. So have a good day, and I hope ये आप सबके लिए काफी helpful हो. Thank you.